Okay, so we'll be starting vectors. There's a problem with the system yesterday. So the first chapter for vector is algebra of vectors. Algebra of vectors basically deals with the basic vectors. Actually, science students know about this, but for commerce people, this is new. है ना because science वाले class 11th में they read it in physics. So what is a vector? Vector is any quantity which has magnitude as well as direction. I think इतना तो सबको पता है ना? तो यहाँ पर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? वेक्टर is represented between any 2 points, suppose A and B, by a arrow over it. So AB is a vector. AB is a vector. मतलब AB कोई एक straight line है. Say suppose AB is a straight line. So if we are representing it through a vector, that is represented as AB vector. AB vector. ठीक है? If A is your initial point, A is your initial point, B is your terminating point. Terminating point. So this is simple representation, है ना? और vectors generally हम represent करेंगे पूरे chapter में A vector, B vector, C vector. अगर ऊपर arrow लगा है, that is a vector. That is a vector. Okay. तो vector basically representation देखा, but vector का कुछ value भी होता होगा, यानी इस A और B का जो length है, that is given by modulus. Modulus of that vector, या आप कह सकते हो magnitude. Magnitude. So magnitude is basically represented as mod of A vector. Okay, and that is sometimes also written as A. All right. अगर मैं आपसे इसकी length पूछूं, तो length will be AB, or it is simply mod of AB with a vector sign. With a vector sign. All right. Okay. Now there are certain type of vectors. तो थोड़े vectors के type देख लेते हैं. Equality vectors. Equality vectors. Equality vectors. Equality vectors यानी कि अगर कोई दो वेक्टर्स हैं A वेक्टर और B वेक्टर, ये इक्वल हैं जब हम कहेंगे कि वेक्टर A is equal to वेक्टर B, so that means they are equal vectors, है ना? यानी कि इनका लेंथ सेम होगा, they are of same length, और they are same or at parallel support. पैरेलल है, सेम सेंस की बात करेंगे. ए का भी डायरेक्शन वही है, बी का भी डायरेक्शन वही है. नेक्स्ट जीरो वेक्टर. जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर यानी कि जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट दोनों कोइंसिडेंट हो. कोइंसिडेंट हो, उनको हम लोग जीरो वेक्टर बोलते हैं. इसी का दूसरा नाम भी होता है नल वेक्टर. नल वेक्टर यानी लेंथ जीरो हो गया, लेंथ जीरो हो गया, लेंथ जीरो हो गया, नल वेक्टर हो गया, नल वेक्टर हो गया. ठीक है, कभी कहीं इसका रिप्रेजेंटेशन 5 से भी होता है, 0 से भी होता है. ओके, नंबर थर्ड यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है कि आपका एक वेक्टर जिसका मॉडुलस 1 है, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसके डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर को अगर हम शो करें तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप. दैट इज कॉल्ड ए कैप. सो बेसिकली mod of a cap is equal to 1. Both are same. Both are same. Okay, this is called unit vector. Unit vector. Okay, और अलग अलग प्रकार के वेक्टर्स की अगर बात की जाए which are a part of your course, there is nothing very important.
कोलिनियर देख लेते हैं, कोलिनियर, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन कोलिनियर पे भी आ जाता है, क्वेश्चन कोलिनियर पे भी आ जाता है। सो कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर को ही हम पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर, यानी कि जिनका सपोर्ट सेम होता है। अगर एक वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, सो दीज बोथ आर कोलिनियर वेक्टर। ओके, एंड negative of a vector, negative of a vector, if suppose I have a vector a vector in this direction, so negative of vector is, suppose this is from a to b, so negative of a vector is from b to a, that is minus a vector, minus a vector. Okay, so ab is equal to a vector, so ba is equal to minus a vector. आपके इनिशियल और टर्मिनेटिंग पॉइंट अगर चेंज हो जाते हैं तो ओके, वेक्टर्स का ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद वेक्टर्स में कुछ लॉज आते हैं, लॉज आते हैं, ठीक है। सबसे पहला लॉ होता है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, अगर आपके पास कोई दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ध्यान देना, दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, जो कि एडजेसेंट साइड्स हैं किसी ट्रायंगल की, जो कि एडजेसेंट साइड है किसी ट्रायंगल की, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो थर्ड साइड से शो होता है, रिजल्टेंट यानी कि a प्लस बी थर्ड साइड से शो होता है, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब a वेक्टर का डायरेक्शन ये है, b वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल should be in this direction, but that third vector direction is taken in opposite direction, taken in opposite direction, and that third vector, the third side of the triangle, is representing the resultant of these two vector, दो वेक्टर का रिजल्टेंट, दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर दोनों वेक्टर ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इज द पॉइंट क्लियर? ये इसका टेल है, ये इसका हेड है, सिमिलरली ये इसका टेल है, ये इसका हेड है। सो द टेल of resultant and head of resultant is tail starting वेक्टर के टेल से कोइंसाइड करती है और हेड सेकेंड वेक्टर के हेड से कोइंसाइड करता है। दिस इज ट्रायंगल लॉ, दिस इज ट्रायंगल लॉ, बेसिकली यूज्ड टू डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, अगर हम ट्रायंगल्स की साइड को कंसीडर करते हैं दो वेक्टर्स, ठीक है। नंबर सेकंड, पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि अगर किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड कोई दो वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, से फॉर सपोज दिस इज वन साइड A and this is another side which is B, which is adjacent, so their resultant is represented by the diagonal, जो इनका diagonal है that is representing A plus B। अगर आप ऐसे देखना चाहो तो ये पैरेलल वेक्टर है, that is A वेक्टर, ऐसे देखना चाहो ये B वेक्टर है, B वेक्टर, so this is the diagonal which is A plus B वेक्टर। ओके, पैरेललोग्राम ये बोलता है कि अगर दो वेक्टर्स A और B जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होते हैं दो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो उनका सम इसको मैं C वेक्टर भी बोल सकता हूँ, एक नया वेक्टर that is represented by the diagonal of parallelogram, and that should be co-initial with the given vector, that should be co-initial with the given vectors। is that clear? ओके, चलो ट्रायंगल लॉ पे एक रिजल्ट देखते हैं। मेरे पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर, मेरे पास कोई वेक्टर है बी वेक्टर, तो मुझे एक बात पता है कि इनका रिजल्टेंट ये आएगा, दैट इज सी वेक्टर व्हिच इज इक्वल टू ए प्लस बी,
ओके, मैं इनको पॉइंट्स दे देता हूँ, लेट इट बी पी क्यू आर। तो यानी कि पी आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर, दैट इज सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और अभी हमने नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर पढ़ा था, अगर मैं आरपी लिखना चाहता हूँ तो माइनस सी वेक्टर होगा, आरपी इज माइनस सी वेक्टर। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पी क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा हूं बाय ए वेक्टर, क्यू आर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं बाय वी वेक्टर, तो आरपी क्या है? आरपी इज माइनस सी वेक्टर, माइनस सी वेक्टर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी हियर, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है तो ये जो क्लोज लूप बन रहा है इसमें वेक्टर का सम कितना होगा? 0। द वेक्टर सम इज इक्वल टू 0। इज दैट पॉइंट क्लियर? यहां से भी वही कंक्लूजन आता है, यहाँ पी आर लिखा था, अगर मैंने इसको आरपी लिखा तो दैट मीन्स आई एम राइटिंग इट एज माइनस सी, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी, और a plus b plus c is equal to 0. Is the point clear to all? बात समझ में आ गई? कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगी, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। नहीं बेटा, गाने नहीं गाने हैं, ठीक है? ओके, कुछ क्वेश्चंस कर लें, क्या क्वेश्चंस तो देख लें इस पे, क्या क्वेश्चन देखेंगे इस पे, क्वेश्चन आएगा भी नहीं ना, बोर्ड कभी पूछेगा। ओके 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 ओके, नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज और होती हैं, जैसे किसी वेक्टर को आपने स्केलर से मल्टीप्लाई किया, सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर, किसी वेक्टर को आपने स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, से फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वेक्टर है, let your vector be a vector and you are multiplying that by a scalar, so that is m a vector, also this is m mod of a vector। अगर आप मॉडुलस को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो स्केलर से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है वेक्टर, स्केलर से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल दिस इज योर वेक्टर a, दिस इज योर वेक्टर a, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज 2a वेक्टर, मैंने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज -2a वेक्टर, मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, half a vector, so you are simply multiplying your vector। okay, one more important thing is your unit vector का एक कंसेप्ट और याद रखना, यूनिट वेक्टर, ये कोई एक वेक्टर है a वेक्टर, मैंने बोला एक यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर, unit vector is a vector parallel to given vector and that is represented by a cap, that is equal to a vector जिसके पैरेलल है अपॉन मॉड ऑफ a vector अपॉन मॉड ऑफ a vector, that is your unit vector। ये बात थोड़ी सी याद रखना है ना, ठीक? और कौन सी इसमें प्रॉपर्टी जो है आपके काम आ जाए, हालांकि यहाँ से बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है कि बोर्ड में कोई क्वेश्चन पूछे, इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट। चलो ठीक है, पर हम कोशिश करेंगे कि अगर क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन को कवर कर लें। एक कंसेप्ट हमने क्लास कहीं पढ़ा था, 10th क्लास में पढ़ा था शायद, या 11th क्लास में पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? मान लेते हैं कि हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स हैं
ए और बी, ठीक है, विथ पोजीशन वेक्टर्स ए एंड पोजीशन वेक्टर्स बी। देखो ये जो पोजीशन वेक्टर्स है ना, ये पोजीशन वेक्टर की बात करें अगर, एक बार पोजीशन वेक्टर भी समझ लो आप लोग। पोजीशन वेक्टर इज डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, यानी कि ये मेरा ऑरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, दो एक्सिस की बात कर रहे हैं। ये मेरा कोई पॉइंट ए, तो ये जो ओ ए है दैट इज ए वेक्टर, ये मेरा पॉइंट बी, ये जो ओ बी है दैट इज मेरा बी वेक्टर। तो अगर पोजीशन वेक्टर बोल दिया तो विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, इज द पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर ऑरिजिन दिखाने की जरूरत नहीं है। ए वेक्टर बोला पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है वो, बी वेक्टर बोला पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है। पूरे वेक्टर्स में अब ये बात याद रखना, बार बार नहीं बताया जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन से लिंक्ड होता है, ठीक है। इनके बीच में कोई एक पॉइंट है सी, जो इन दोनों पोजीशन वेक्टर को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m रेशियो n, है ना। अब इसी चीज को ऐसे समझने की कोशिश कर लो, ऐसे समझने की कोशिश कर लो। ये था OA वेक्टर व्हिच वाज A वेक्टर, ये था OB वेक्टर व्हिच वाज B वेक्टर। सवाल है व्हाट इज OC वेक्टर, सवाल है व्हाट इज OC वेक्टर। सो OC वेक्टर इज इक्वल टू, OC वेक्टर इज इक्वल टू m into B vector plus n into A vector upon m plus n। यही चीज तो पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बस कोऑर्डिनेट्स आ जाते थे। यहाँ पर कोऑर्डिनेट की जगह मैंने वेक्टर लिख दिया, कोऑर्डिनेट की जगह वेक्टर लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके, इसकी तर्ज पे एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद एग्जाम में आ जाए। राइट डाउन क्वेश्चन, find the position vector of a point R, find the position vector of a point R which divides the line segment, which divides the line segment joining P and Q, joining P and Q, whose position vector, whose position vectors are 2A plus B vector and A minus 3B vector externally in the ratio 1:2, in the ratio 1:2। अब देखो यहाँ पर अभी हमने जो फॉर्मूला देखा था वो था इंटरनली, ये बोल रहा है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली में बीच में जो साइन होता है वो माइनस का आता है, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, दैट इज फॉर एक्सटर्नली, ठीक है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। हमको पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, कितना है 2A प्लस B, पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है A माइनस 3B, हमसे किसी पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर पूछा है और ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। देखो एक्सटर्नली का मतलब ये पॉइंट R यहाँ नहीं आएगा, ये कहीं आगे आएगा, बट आई एम फॉर योर सेक आई एम राइटिंग इट हियर, so it is dividing in 1:2। Now it's very simple to find the position vector of this R, 1 into this, 1 into A vector minus 3B vector, बीच में साइन माइनस का, 2 into this vector, 2 vector plus B vector upon 1 minus 2, so that will give you multiply करके solve कर लो 3A plus 5B, 3A plus 5B, is it clear? Okay, यानी कि अब मुझे एक बात बताओ, चलो इसी क्वेश्चन कुछ और देखते हैं। आर वेक्टर है मेरा, आर का जो पोजीशन वेक्टर है वो है 3A plus 5B, ओके, और Q का जो पोजीशन वेक्टर है वो है A minus 3B। अच्छा, मैं अगर तुमसे ये पूछूं
कि r प्लस क्यू बाई 2 कितना आ रहा है, दैट इज 3a प्लस 5b प्लस a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2, 3a प्लस a 4a, 5b minus 3b minus 2b divided by 2, that is 2a minus b. 5b minus 3, it should be plus 2a plus b, 2a plus b. थोड़ा सा यहाँ देखें, अगर 2a plus b, 2a plus b was your p vector, 2a plus b was your p vector. इसका मतलब ये हुआ कि this is p vector, position vector of p. इसका मतलब p is the midpoint, midpoint. तो पहले बताया था r जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, r जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है. इज द क्वेश्चन क्लियर टू ऑल? आई होप समझ में आ गया होगा सबको. बहुत बढ़िया. ठीक है, बोर्ड ने एक क्वेश्चन पूछा था, सेम क्वेश्चन था, 2a प्लस बी, a माइनस 3b की जगह 2b था, और रेशियो इंटरनली दिया था 1:2, है ना, लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा था उसने. ठीक है, और इसमें आपके क्वेश्चन जो बनेंगे, एक्चुअली में अलजेब्रा वेक्टर्स में ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे बनते नहीं है ना, क्योंकि वेक्टर्स में क्वेश्चन आगे आते हैं, बट फिर भी यू शुड हैव दैट नॉलेज ऑफ वेक्टर्स, एटलीस्ट वेक्टर्स का नॉलेज होना चाहिए. ओके. हाँ, सो अब यहाँ पर बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन. कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन. ठीक है, चलो, हमारा कोई ये कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे ध्यान से समझ लेना है ना, पूरा 3D 3D सब यहीं से काम लगेगा. मोशन इन 3D, एक्स और वाई, ये ऑरिजिन, मेरा कोई पॉइंट है P जो कि है x, y, ये पॉइंट है P विच इज x, y. ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, लेट दिस पॉइंट बी M, लेट दिस पॉइंट बी M. सो व्हाट इज OM, ये तो समझ में आ गया, x है. व्हाट इज PM, ये भी समझ में आ गया, y है. ओके, मैं वेक्टर्स डिनोट कर रहा हूँ. OM इज अ वेक्टर, OM इज अ वेक्टर. सो हमको समझ में आ गया OM वेक्टर क्या है, x. गलत हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा. जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी एक्सिस के अलोंग, तो आपको ये पता होना चाहिए एक्स एक्सिस के अलोंग जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आई कैप से होता है, वाई एक्सिस के अलोंग जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो जे कैप से होता है. अगर यहीं जेड एक्सिस भी होती तो के कैप से होता. इसका मतलब ये है एक्स आई कैप. सिमिलरली पीएम is in the direction of y axis, so this is yj cap, yj cap. अब मैंने आपसे पूछा व्हाट इज ओपी वेक्टर. ट्रायंगल लॉ याद है कि नहीं है, दैट इज OM वेक्टर प्लस PM वेक्टर, दैट इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप. अभी ये बताने का रीजन सिर्फ यही है, वो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है, वरना ये मैथ साइंस वाले बच्चों को सब आता है. ठीक है, अगर मैं ओपी वेक्टर का मॉड पूछूं तो मॉड होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इज दैट पॉइंट क्लियर? इसको मैं आर वेक्टर से भी डिनोट कर सकता हूँ. आर वेक्टर का मॉड ऐसे निकालते हैं, एक्स आई प्लस वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर में निकाला है ना मॉड, सेम वैसे ही है. ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश. अच्छा, चलो कुछ और बातें करते हैं इसके बारे में. क्या बातें की जाए? मेरा XY प्लेन में ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इसमें 2 पॉइंट्स हैं. एक पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1. एक पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2. ठीक है, बहुत बढ़िया. यहां से एक वेक्टर यहाँ
यहाँ से एक वेक्टर यहाँ, तो ये ए बी वेक्टर आपको मिल जाएगा। ये तो तुमको समझ में आ गया होगा। यानी कि यहां से लेके यहां तक x1, यहां से लेके यहां तक x2, और यहां से लेके यहां तक y1, यहां से लेके यहां तक y2। ठीक है, काफी कुछ चीजें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। लेट दिस पॉइंट बी f, लेट दिस पॉइंट बी f। तो ए बी क्या है? ए बी वेक्टर है क्या? ए एफ वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर। अब क्या कोई मुझे बताएगा ए एफ वेक्टर कितना है? ए एफ वेक्टर कितना है? x2 माइनस x1 आई कैप। बी एफ वेक्टर कितना है? y2 माइनस y1 जे कैप। तो ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, y2 माइनस y1 जे कैप। किसी ने तुमसे पूछा मॉड बता दो इसका, मैग्नीट्यूड रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इज द मॉड। क्लियर है? सभी को बातें समझ में आई? बहुत बढ़िया, यहाँ तक की बातें समझ में आनी भी चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आगे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर of magnitude, find a vector of magnitude 5 units which is parallel to the vector, which is parallel to the vector 2i cap minus j cap, 2i cap minus j cap। ठीक है, पहली चीज तो आप मुझे क्या बताओ कि एक वेक्टर दिया हुआ है 2i cap minus j cap, लेट इट बी ए वेक्टर। इसके पैरेलल एक वेक्टर चाहिए, यानी वो तो हो गया ए कैप, दैट इज ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। मॉड ऑफ ए क्या आएगा? रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 4 प्लस 1 5। यानी कि वो पैरेलल वेक्टर निकाल रहे हैं हम अभी, 2i कैप माइनस जे कैप अपॉन रूट 5। लेकिन उसने क्वेश्चन में बोला है कि वो जो पैरेलल वेक्टर है उसका खुद का मैग्नीट्यूड कितना है? 5। यानी कि ये जो वेक्टर आपको निकालना है, ये लाल वाला, ये जो वेक्टर है ये है क्या? 5 ए कैप निकालना है, 5 ए कैप। So 5 into 2i minus j upon root 5, that is equal to root 5 2i minus j cap। क्लियर है सभी को? बातें समझ में आ गई? आ ही गई होंगी, तुम लोग तो इंटेलिजेंट लोग हो, सब समझ जाते हो, आंखों ही आंखों में सारे कर लेते हो, है ना, खुद ही समझ लेते हो। देखो बेटा, जैसे अभी हमने बात की थी वेक्टर्स की 2 डायमेंशन में, है ना, वैसे ही वेक्टर 3 डायमेंशन में भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। ये लो 3 डायमेंशन x y z, ठीक है, 3 डायमेंशन में देख लेते हैं। कोई हमारा पॉइंट P है 3 डायमेंशन में, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, से गुजर जाना है। तो बॉक्स वैसा बन रहा है, समझने की कोशिश कर लेना, ठीक। और जहां पर तीनों एक्सिस मिलती हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। ओ ओ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आई कैप, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जे कैप, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में के कैप। ये रिप्रेजेंटेशन होता है, ये बता देते हैं किस डायरेक्शन में है वेक्टर, ठीक है। पॉइंट ले लें, ये तो पॉइंट ओ है, लेट दिस बी ए बी सी
let this point be B, this point be C. So this is A dash, B dash, C dash. और कोई पॉइंट बचा? ये हमारा बीच का अनोखा पॉइंट है जो कि है हमारा P पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y एंड z. ठीक, बहुत बढ़िया. अच्छा, ऑरिजिन से इस पॉइंट को हमने जोड़ा, ये ओपी वेक्टर आ गया. ओपी वेक्टर. अब ये ओपी वेक्टर होगा क्या? देखो, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से आप निकाल सकते हो, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से निकाल सकते हो. मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि जैसे अभी हमारा ओपी जो था वो सिर्फ एक्स वाई कोऑर्डिनेट में था, तो हमने ओपी वेक्टर को डिफाइन किया था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. तो यहाँ पर ओपी वेक्टर में आ जाएगा जेड के कैप, जेड के कैप. इज दिस पॉइंट क्लियर? यानी कि ओ ए हो गया एक्स, ओ बी हो गया वाई, ओ सी हो गया जेड. इन तीनों का समेशन इज द ओपी वेक्टर. ओपी वेक्टर. इज द पॉइंट क्लियर? तो यानी कि स्पेस में, ये स्पेस ही तो है 3 डायमेंशन में, स्पेस में कोई वेक्टर देना है तो स्पेस में कोई वेक्टर देते हैं आर वेक्टर, दैट इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तीनों एक्सेस का यूज करके. किसी ने तुमसे पूछा इसका मॉड बता दो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक, बहुत बढ़िया, शाबाश. एक बात और, मान लो तुम्हारे स्पेस में एक पॉइंट है P, कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1. एक पॉइंट है Q, कोऑर्डिनेट है x2, y2 एंड z2. आपसे पूछा PQ वेक्टर बताओ. दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P. व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q? x2i प्लस y2j प्लस z2k, यही तो पोजीशन वेक्टर हुआ, माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k, बस माइनस कर देना. क्लियर है सभी को पॉइंट? बढ़े आगे, क्वेश्चन देख लिया जाए. तो क्वेश्चन देखो कैसे समझ में आएगा. ठीक, राइट डाउन क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z so that vectors a vector that is equal to xi cap plus 2j cap plus zk cap and b vector is 2i cap plus yj cap plus k cap are equal. कैसे हैं? इक्वल है. अगर दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो यानी कि एक्स आई कैप 2j कैप प्लस zk कैप इज इक्वल टू 2i कैप yj कैप प्लस k कैप. अब इक्वल टू है यानी x का कंपोनेंट x के बराबर, y का कंपोनेंट y के बराबर, z का कंपोनेंट z के बराबर. सो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 1. दैट्स इट. ठीक है, ये सब तुम्हारे एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, दैट इज 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6a कैप, 6k कैप. ठीक है, तो निकाल के देख लेते हैं. सो व्हाट इज दिस मॉड ऑफ a वेक्टर? दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 36. 3 स्क्वायर यानी कि 9. निकाल लो इसको सॉल्व करके, कितना आ रहा है? 9 प्लस 4 प्लस 36, 49, 7. क्लियर है क्वेश्चन यहां तक? लेट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड अ यूनिट वेक्टर
find a unit vector in the direction of a plus b if a vector is equal to 2i cap minus j cap plus 2k cap, b vector is equal to minus i cap plus j cap माइनस के कैप। ठीक है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आपको एक यूनिट वेक्टर ढूंढना है, तो मैंने यूनिट वेक्टर तुमको सिखाया था, किसी भी वेक्टर के पैरेलल वाले वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ये यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो किस वेक्टर के डायरेक्शन में ढूंढना है? ए प्लस बी, यानी कि ये वेक्टर क्या होना चाहिए? ए प्लस बी होना चाहिए। तो पहले ए प्लस बी निकालो, दैट इज इक्वल टू 2i माइनस आई माइनस जे प्लस जे प्लस 2k माइनस के। कितना आ गया? आई जे से जे गया प्लस के कैप, दिस इज इक्वल टू आई कैप प्लस के कैप। तो ये वेक्टर क्या आएगा? दैट विल बी ए प्लस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर। ये तो आएगा ए प्लस बी वेक्टर का कैप। सो आई प्लस के एंड द मॉड विल बी √1 + 1 √2। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, कोई डाउट नहीं। बहुत बढ़िया, शाबाश, यू पीपल आर इंटेलिजेंट। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, two vectors j plus I and 3i minus j plus 4k represent the sides AB and AC of triangle ABC. Find the length of median through A. A से जाने वाली मीडियन की लेंथ निकालो। देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ज्योमेट्री के बारे में आइडिया होना चाहिए। हालांकि वेक्टर में मैंने ये वाला पार्ट टच नहीं किया जहाँ पर मीडियन का डिस्कशन होता है। मैं आपको सीधा कंक्लूजन बता देता हूँ। अगर आपका ये ट्रायंगल है ABC, कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और D जो है ये मिड पॉइंट है, क्योंकि मीडियन जो होता है वो मिड पॉइंट पे काटता है। यानी कि आपका AD क्या हो गया? मीडियन हो गया। अच्छा, अगर AD मीडियन है, मिड पॉइंट है BC का D, तो AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर, AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD वेक्टर। ये प्रूवन स्टेटमेंट है, प्रूवन स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट्स वेल प्रूवन स्टेटमेंट। इफ यू वांट मैं अलग से इसको प्रूव करके बता दूंगा, ठीक है, पर अभी तो जरूरत है नहीं, तो इसलिए इसको अभी एज ऑफ नाउ लीव इट। चाहिए तो बता देंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो बस अब क्या है, आपको पूछा है लेंथ ऑफ मीडियन, तो यानी एडी वेक्टर निकाल लो, फिर उसका मॉड निकाल दो। एडी वेक्टर कितना आएगा? तो एबी वेक्टर दिया हुआ है जे प्लस आई, एसी वेक्टर दिया हुआ है 3i माइनस जे प्लस 4k, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एडी वेक्टर। सो एडी वेक्टर कितना आ गया? सॉल्व कर लो इसको, दैट कम्स आउट टू बी 2j, sorry it should be I plus 3i 4i, 2ad is equal to 4i, jj cancel 0j and plus 4k. So what is AD vector?
2i 0j plus 2k. So what is mod of AD? 4 plus 0 plus 4, 2√2. क्लियर है सभी? कोई बात समझ में आई? किसी कोई समस्या हो तो बता दो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा बोल नहीं रहा है, कोलिनियरिटी पे बात कर ली जाए। कोलिनियरिटी पे बात कर ली जाए। देखो दो वेक्टर कोलिनियर है, दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो वहां पर कोई ऐसे स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे सच दैट, राइट डाउन कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी, ठीक है, कोलिनियरिटी। कोलिनियर टू non-zero vectors A vector and B vector are collinear if there exist scalars xy both not equal to 0 such that x a vector plus y b vector is equal to 0 vector, is equal to 0 vector। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर ए बी हैं और जो स्केलर हैं एक्स एंड वाई, दो की दोनों नॉन इक्वल टू 0 है और उनका सम अगर 0 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आइदर एक्स और वाई बोथ इज इक्वल टू 0, या तो एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 0, दोनों ही 0 के बराबर होंगे, तभी वो 0 के बराबर आएगा। देखो कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि समझने की कोशिश करो, है ना। सिंपल लॉजिक में तो स्टेटमेंट वाइज दिया हुआ था, इसमें लिखवा दिया, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में स्टेटमेंट पूछ ले, असर्शन रीजन में पूछ ले, आजकल पता नहीं क्या पैटर्न हो गया। मैंने कहा मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू आई प्लस जे, जहां से समझना बस एक बार समझ में आ जाएगा। एक दूसरा वेक्टर है बी, पहली चीज तो अपोजिट डायरेक्शन में ध्यान देना, ठीक है। तो दिस इज 2i प्लस 2j। अब मुझे बात बताओ, मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 2 इंटू आई प्लस जे? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ए वेक्टर को मैं ये नहीं बोल सकता माइनस 2 बी वेक्टर, नहीं। बी वेक्टर को मैं बोल सकता हूँ माइनस 2 ए वेक्टर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता बी प्लस 2a इज इक्वल टू 0। अरे हो गया ना कोलिनियर, ये तो कंडीशन आ गई। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि आमने और सामने वाला जो है वो बराबर होगा, चाहे स्केलर मल्टीपल कुछ भी हो, बट दे आर कोलिनियर, दे आर कोलिनियर। यार एक तुमने वो चीज पढ़ी थी, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये कोई पॉइंट है एक्स वाई और जेड, मैंने बोला ये कोलिनियर है, एक ही लाइन पे लाई करना है, डेल्टा कितना हो गया 0। पढ़ा था ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लास्ट ईयर, अब पता नहीं कौन सी ईयर पढ़ा। तो कोलिनियर बात को याद रखना कि कोई चीज अगर कोलिनियर बोल दी जाए, जैसे तुमसे बोल दिया जाए कि कोई पोजीशन वेक्टर है, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है, और बोले कि प्रूव करो कि दीज आर कोलिनियर, ए भी निकालो इज्जत के साथ, बी सी निकालो इज्जत के साथ, और ए सी निकालो, फिर देखो कौन किसका सम के बराबर आ रहा है। जैसे यहाँ पे हम निकालते थे एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड, फिर बता देते थे एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी लगता है, बस वेक्टर्स में लिखोगे, वेक्टर्स में लिखोगे। इज इट पॉइंट क्लियर? सभी को बात समझ में आ गई? क्वेश्चन करवा दिया जाए इस पे, चलो ठीक है क्वेश्चन करवा देते हैं। राइट डाउन क्वेश्चन।
राइट डाउन क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है द पोजीशन वेक्टर of points P, Q, R are I cap plus 2j cap plus 3k cap minus 2I cap plus 3j cap plus 5k cap 7I cap minus k cap. Prove that PQR are कोलिनियर पॉइंट्स। आपको प्रूफ करना है कि PQR जो है ये कोलिनियर है। ठीक है, तो कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात। PQ निकाल लो। PQ मैंने सिखाया था, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ठीक है, दैट इज माइनस 2I प्लस 3J प्लस 5K माइनस I कैप प्लस 2J प्लस 3K। कितना आया सॉल्व करके देख लो। माइनस 3I प्लस J प्लस 2K। ठीक है, QR निकाल लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है। 9I माइनस 3J माइनस 6K। अब यहीं से देख लो यार, QR इज नथिंग बट माइनस 3 टाइम्स PQ। हो गए ना तीनों पॉइंट्स कोलिनियर। यहीं से आ गया, तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल? ठीक, एक आध लॉजिक वाइज क्वेश्चन और करवा देते हैं इसमें। ठीक है, कोलिनियर पे क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड में, है ना, बोर्ड में क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन और कर लो। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द पॉइंट -1 -1 2 2M5 3 11 6 they are collinear. Find the value of M. Find M. कोलिनियर दिया हुआ है, M की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मान लो कि पॉइंट ऑफ PQR, let this point be PQR। पहले बताओ PQ क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। देखो ये पॉइंट दिए हुए, तो आप P को डिफाइन कर सकते हो। P वेक्टर क्या आएगा, माइनस I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप। Q वेक्टर क्या आएगा, Q वेक्टर विल बी 2I कैप प्लस MJ कैप प्लस 5K कैप। और R वेक्टर क्या आएगा, दैट विल बी 3I कैप 11J कैप प्लस 6K कैप। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। Q का 2I प्लस MJ प्लस 5K माइनस I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप। कितना आ रहा है, 2I माइनस ऑफ माइनस I 3I। This will become M plus 1J and plus 3K cap. This is PQ vector. Next, PR vector, position vector of R minus position vector of P। यहूं निकाल लो, 3I plus 11J plus 6K minus of minus I cap minus J cap plus 2K cap। सॉल्व कर लो, 4I cap plus 12J cap प्लस 4K कैप। और अगर PQR लीनियर PQR कोलिनियर है, यानी कि PQ वेक्टर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट
इंटू पी आर वेक्टर। बिल्कुल, क्वेश्चन में बोल दिया कोलिनियर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दैट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स पी आर। लैम्डा कोई भी स्केलर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको तो अब वैल्यू को इक्वेट करना है। 3i प्लस m प्लस 1j प्लस 3k दैट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 4i 12j प्लस 4k। अब इक्वेट कर लो यार दोनों तरफ, i को i से कर दो तो ये लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। सो 3 इज इक्वल टू 4 लैम्डा, ठीक है। m प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 12। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही, 3/4, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। m प्लस 1 इज इक्वल टू 3/4 इंटू 12। 4 1 जा 4 3 जा 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 m इज इक्वल टू 8। हो गया क्वेश्चन खत्म। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टिल नाउ। कोलिनियरिटी पे इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा। सभी को बात समझ में आ गई या और दिमाग लगाना है? ठीक है, तो ये पहला सेशन था। इस पहले सेशन को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन एक और सेशन में लूंगा अभी थोड़ी देर बाद, और उसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज दी जाएगी। कृपया करके आज शाम की क्लास के पहले रिकॉर्डिंग देख लें।